موضوعات ہیں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی لگاتار شور شرابے اور اپوزیشن کے احتجاج کے بیچ ملتوی۔ جموں خطے میں لگاتار بارشوں سے دریاؤں اور نالوں میں اضافہ۔ کیلا موڑ پر تیز بارش کے باعث مٹی کے تودے گرانے سے شاہراہ 4 گھنٹے تک رہی بند۔ ریاست لگاتار بارش سے کئی تعمیرات کو نقصان، 2 افراد کی موت۔ غیر قانونی اور غیر سائنسی کان کنی سے دریائے جہلم سمیت دیگر ندی نالوں کو ناقابل تلافی نقصان، ذمہ دار کون؟ اور آکاشوانی نے آج منایا اپنا قومی نشریاتی دن۔ اور بھی کئی موضوعات ہیں آج کے شہر بھی میں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ٹھیک میٹر FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، بہار میں انتخابی کمیشن کی ووٹر لسٹ پر خصوصی جامع نظر ثانی یعنی SIR کے خلاف متحد اپوزیشن نے آج مسلسل دوسرے دن راجیہ سبھا میں ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کرنا پڑی۔ مانسون اجلاس کا آج تیسرا دن تھا اور بہار میں ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے راجیہ سبھا میں گزشتہ دنوں سے کوئی قانون سازی کا کام نہیں ہو سکا ہے۔ ادھر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے اپنے مطالبات کے حق میں لوک سبھا میں بھی زبردست ہنگامہ آرائی کی، جس وجہ سے ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ جیسے ہی پریزائڈنگ آفیسر کرشنا پرساد نے دوبارہ کارروائی ملتوی کرنے کے بعد کی تو اپوزیشن ارکان نعرے لگاتے ہوئے ایوان کے وسط میں آئے۔ ہنگامے کے دوران پریزائڈنگ آفیسر نے ممبران کو خاموش رہنے اور پیش ہونے والے بل پر بحث کرنے کی اپیل کی، مگر اپوزیشن نے ایک نہ سنی اور اس وجہ سے کارروائی ملتوی ہوئی۔ دوپہر 12 بجے جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو کانگریس، سماجوادی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے SIR کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہنگامہ کیا اور یوں کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ شیربین آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے عین مطابق جموں کشمیر میں رک رک کر بارشیں ہو رہی ہیں اور یہ سلسلہ اگلے 48 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمے نے اپنی ایڈوائزری میں کہا کہ جموں کشمیر میں کہیں کہیں تیز بارش کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں اور کچھ مقامات پر سیلابی ریلیں، لینڈ سلائیڈنگ اور پتھر کھسک آنے کے واقعات بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ محکمے کے ترجمان نے کہا کہ جموں کشمیر میں 23 اور 24 جولائی کو گرج چمک کے ساتھ کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ہے اور جموں صوبے کے پنچ، راجوری، رامبن، ادھمپور، ریاسی اور کٹھوا اضلاع میں کہیں کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے، جبکہ کشمیر میں کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش متوقع ہے۔ موصوف کا کہنا ہے کہ 25 سے 27 تک موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، تاہم اس دوران کہیں کہیں بوندا باندی ہو سکتی ہے، جبکہ 28 سے 30 جولائی تک رک رک کر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، تاہم اس دوران جموں صوبے کے بعض علاقوں میں صبح کے وقت تیز بارش ہو سکتی ہے۔ ادھر رامبن اور بانہال کے سیکٹروں میں گزشتہ رات سے مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث کیلا موڑ پر مٹی کے تودے گرانے کے باعث شاہراہ پر ٹریفک کو 4 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ رامبن نے احتیاطی اقدام کے طور پر بعض علاقوں میں تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ لیا۔ ضلع میں مسلسل بارش کے پیش نظر طالب علموں اور عملے کی سلامتی کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا گیا ہے، تاہم رامبن اور بٹوت کے زونوں میں اسکول معمول کے مطابق کھلے رہے اور تدریسی سرگرمیاں جاری رہیں۔ ادھر اطلاعات کے مطابق کشمیر کو ملک کے ساتھ جوڑنے والی شاہراہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر مگرکوٹ کے نزدیک سیلابی ریلیں اور مٹی کے تودے گرانے کے نتیجے میں ٹریفک کی نقل و حمل روک دی گئی۔ حکام نے مسافروں سے کہا ہے کہ وہ موسم بہتر ہونے اور شاہراہ صاف ہونے تک اس پر سفر کرنے سے پرہیز کریں۔ اس دوران کشتواڑ سنتھن اننت ناگ روڈ بھی سنتھن نالے میں سیلابی ریلیں آنے کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سڑک صاف ہونے تک اس پر سفر کرنے سے احتیاط کریں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں 24 جولائی تک بارش کا امکان ہے۔ ادھر قومی شاہراہ پر تیز بارش اور مٹی کے تودے گرانے کے باعث پیدا شدہ حالات کے پیش نظر انتظامیہ نے لوگوں کو احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ شاہراہ کو جزوی طور پر کھول دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے محمد تسکین کی یہ رپورٹ۔
जिला रामबन में 2 रोज से जारी अब्रो आलूद मौसम आज अलल सुबह से तेज बारिशों में बदल गया और तेज बारिशों के नतीजे में रामबन के इलाके में पस्सियों और मलबे की जद में आने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा सुबह 10 बजे से कम से कम 4 घंटों तक ट्रैफिक के लिए बंद रहने के बाद टनल और शहरी रामबन के मुकाम ऊपर पहाड़ों और नालों से गिर आया बाहरी मलबा, कीचड़ और पत्थर टनल के अंदर और सड़क पर जमा हुए और कश्मीर से जम्मू जाने वाली सड़क को मुकम्मल तौर से जबकि जम्मू से कश्मीर आने वाली लेन को जुज़वी तौर बंद कर गई। हुकाम ने बताया कि शहर के बंद होने से पहले ही जम्मू से पहलगाम और बालतल के रास्ते जा रही शरी अमरनाथ यात्रा ट्रैफिक में शामिल 118 छोटी बड़ी मुसाफिर गाड़ियों ने रामबन के मुतासिर इलाके को पार किया था। ताहम पवित्र गुफा के दर्शन के बाद पहलगाम के रास्ते वापस आने वाली यात्रा की 24 गाड़ियों को हुकाम ने केला मोड़ रामबन के इलाके में महफूज मुकाम पर रोक दिया था, जबकि बालतल के रास्ते वापस आने वाले 3582 अकीदतमंदों पर मुश्तमिल 102 छोटी बड़ी मुसाफिर गाड़ियों को बानहाल के लांबर ग्राउंड में कायम लंगर साइट पर कुछ वक्त के लिए दरमंदा रहना पड़ा। जम्मू और श्रीनगर से सफर करने वाली मुसाफिर गाड़ियों को भी शहर के बंद होने के पेश नजर दिन के 2 बजे तक उधमपुर और काजीगुंड समेत शहर के मुख्तलिफ मुकामात से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं थी। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन के अहदेदारों ने आज शाम शहरबीन को बताया कि सेरी और केला मोड़ के मुकाम आज दोपहर बाद शहर को जुज़वी तौर बहाल करने के फौरन बाद बानहाल और केला मोड़ रामबन के पास दरमंदा यात्रा की गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर जम्मू की तरफ जाने की इजाजत दी गई और बाद में 2 बजे बाद से काजीकोट और उधमपुर समेत शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर रोके गए मुसाफिर बरदार ट्रैफिक को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चलने की इजाजत दी गई। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने मजीद बताया कि रामबन और बानहाल के सेक्टर में दोपहर बाद से बारिशें थम गई हैं और ट्रैफिक हुकाम की निगरानी में शहरी और केला मोड़ के मुकाम 4 लेन शाहरा की मुकम्मल बहाली के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मशीनरी आज शाम तक काम पर लगी हुई थी। आपने मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट सुनी। इस दौरान जिला इंतजामिया राजौरी ने खराब मौसम के पेश नजर आज 23 जुलाई को भी जिले में तमाम स्कूल बंद रखे। दरियासना रियासी के माहौल इलाके में दौरान शब भारी बारिशों की वजह से मट्टी के तूदे की जद में आने से 2 अफराद की मौत हुई है। रियासी में मुसलसल बारिशों के बायस बाज़ इलाकों में पानी की सतह में इजाफा हुआ है, जबकि चंद अंदरूनी सड़कें बंद हुई हैं, जिससे लोगों को सख्त परेशानियों का सामना है। मुकम्मल रिपोर्ट रियासी से जाहिद मलिक की ज़बानी। जिला रियासी में भी गुज़श्ता 3 रोज से लगातार मौसलाधार बारिशों की वजह से आवामी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इस शदीद बारिश के नतीजे में न सिर्फ जानी व माली नुकसान हुआ है बल्कि दर्जनों रिहायशी मुकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। जिला के दूर दराज इलाकों में तुगयानी नालों और पहाड़ी नदियों की बेकाबू रवानी के सबब पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। मोहर से गुलाबगढ़, मोहर से देवल, मोहर से रजौरी और दिगर अंदरूनी सड़कें मसलसल बंद पड़ी है और आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। यहाँ तेज बारिशों के बायस बिजली का निजाम पूरी तरह से दरम बरम हो गया है। कई इलाकों में मुकम्मल तारीखी का आलम है और लोगों के मोबाइल फोनों की बैटरियां भी खत्म हो गई है और आपसी राब्ते भी टूट चुके हैं। हालात की संगीनी के पेश नजर चीफ एजुकेशन ऑफिसर रियासी ने मसलसल दूसरे रोज भी तमाम तालीमी इदारों को बंद रखने के अहकामात जारी किए ताकि बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। यहाँ गुलाबगढ़ के देवल इलाका में आज बेगम जान नामी खातून को अचानक जजकी की तकलीफ शुरू हुई, मगर देवल पीएचसी में कोई डॉक्टर मौजूद ना होने और मसलसल सड़कें बंद होने के बाइस मुकामी लोगों ने खातून को चारपाई पर उठाकर तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके इस खातून को मोहर अस्पताल मुंतकिल किया। शदीद बारिश और खतरनाक रास्तों के बावजूद मुकामी अफराद ने अपनी जान खतरे में डालकर ये इंसानी खिदमत इंजाम दी। देवल डोगा के एक शौकत अली नामी नौजवान ने कहा कि अगरचे देवल पीएचसी में कोई डॉक्टर मौजूद होता तो इस खराब मौसम में इस खातून को चारपाई पर उठाकर मोहर ले जाने की जरूरत न पड़ती। यहाँ गुज़श्ता शब दिल दहला देने वाला एक और साहनिया पेश आया। शहरबीन को फराम हुई तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता शब तकरीबन 2 बजे सब डिवीजन माहौर के बदौरा शिव गुफा के करीब शदीद लैंडस्लाइड के नतीजे में 2 नौजवान जहां बाग हो गए। बताया जाता है कि दोनों नौजवान कौसरनाग यात्रा की तैयारी के सिलसिले में इलाका में मौजूद थे और खीमे में सो रहे थे। पहाड़ से बाहरी मिट्टी और चट्टानों का तोदा अचानक उनके खीमे पर आ गिरा,
जिस के नतीजे में दोनों की मौका पर ही मौत हो गई। मरने वाले नौजवानों की शिनाख्त 26 साल रशवाल सिंह वल्दे सोबाराम साकना तूली कालाबंद चसाना और 23 साल रवि कुमार वल्दे परशोत्तम कुमार साकना चिनैनी जिला उधमपुर के तौर हुई। मौजूदा खतरनाक मौसमी हालात के पेश नजर मुकामी इंतजामिया ने एडवाइजरी जारी करते हुए आवाम से अपील की है कि वो बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकले। तुगियानी नालों और बंद सड़कों के बाइस जान व माल का खतरा बढ़ चुका है। आपने जाहिद मलिक की रिपोर्ट सुनी। इस दौरान मुश्ताक देव ने खबर दी कि जिला किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में आज कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। बोंजवा, सरूर, पाडर और छात्रों के नालों में पानी की सतह में खातिर का इजाफा देखा गया है, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। इधर सरूर के कुछ मकामी अफराद ने महकमा तालीम से अपील की है कि उन देहात के तलबा को स्कूल जाने में रियायत दी जाए जहाँ बच्चों को नालों से गुजर कर जाना पड़ता है, क्योंकि पानी का बहाव तेज है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। त्राल से शबीर भट्ट ने खबर दी इलाके के बंगडारा और मुलिका देहात में गुज़श्ता शब होने वाली शदीद बारिश के बायस मक्की की फसल और सब्जियों की क्यारियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और इस वजह से किसान मायूस हैं। मकामी लोगों का कहना है कि उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और उन्हें माली नुकसान का सामना है। जिला इंतजामिया से अपील की गई है कि माहिरीन की टीम इलाके में रवाना करके नुकसान का जायजा लिया जाए। इधर ददमरग त्राल में यरकान की बीमारी फूट पड़ी है, जिस वजह से कई अफराद मुतासिर हैं। मकामी लोगों के मुताबिक बीमारी तेजी से फैल रही है। महकमा सेहत की जानिब से ताहाल कोई टीम इलाके के लिए नहीं भेजी गई है, जिस पर आवाम में नाराजगी है। मकामी लोगों ने महकमा सेहत से अपील की है कि फौरी तौर माहिरीन की एक टीम इलाके के लिए रवाना की जाए। इधर राजौरी से हमारी नुमाइंदे आरिफ कुरैशी के मुताबिक जिले के बाडला मंग इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मची जब एक बच्चा अपने मवेशियों को नदी पार करने ले जा रहा था कि अचानक सैलाब आ गया। बच्चा नदी के बीच में फंस गया, जिससे लोगों में काफी तशवीश पैदा हुआ। इतला मिलते ही जिला इंतजामिया और NDRF की टीमें मौके पर पहुंची और साथ ही फौज की मदद भी ली गई। फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए से बच्चे को वहां से निकाला गया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए लोगों से अपील की कि वो खराब मौसम के दौरान नदी नालों से दूर रहें और बच्चों पर कड़ी निगाह रखें। कोलार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से लगातार ये लोगों को नसीहत दी जा रही है कि किसी भी नदी, नाले, झरने के पास ना जाएं। इसी चीज को लेके कल एक मीटिंग की गई थी सभी अफसरों के साथ, सभी महकमों के साथ, कि कहीं पे भी, जहाँ पे भी कोई भी नदी नाला है, उसके पास में अपने पशुओं को चराने के लिए, पानी पिलाने के लिए या फिर कोई और पर्पज से नदी नालों के पास ना जाएं। इसके लिए ऑर्डर्स भी बाकायदा किए गए थे। मीडिया के माध्यम से लोगों को इस बात की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग, खास तौर से छोटे बच्चे, नदी नालों के आसपास रोम करते हुए, फिर जब अचानक से नदी में फ्लड लाइक सिचुएशन बढ़ गई तो बच्चा वहाँ पे फंस गया। लेकिन उसी टाइम, क्योंकि टीम्स अलर्ट पे थी, तो टीम्स को मालूम पड़ गया और टीम्स मौके पे पहुंच गई। क्योंकि पानी का बहाव ज़्यादा था, इसलिए हमें हेलीकॉप्टर सर्विस का फ़ायदा लेना पड़ा और मैं शुक्रिया अदा करूंगा इंडियन आर्मी का कि जिन्होंने टाइमली इसको हेलीकॉप्टर सर्विसेज को यहाँ पे फौरी तौर पे मुहैया करवाया और बच्चे की जान जो है हमने बचा दी है। लेकिन इसके साथ मेरी फिर से मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि बरसात का सीजन है, बारिशें जो है टाइमली कभी रात को बढ़ जाती हैं, उस वजह से अचानक से नदी का स्तर जो है बढ़ जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी कीमत पे किसी भी नदी नाले के पास में ना जाएं। खास तौर से छोटे बच्चे अपने घर वालों को बताए बिना कहीं ना जाएं, क्योंकि उसकी जानकारी फिर पेरेंट्स को भी नहीं होती और वो एक बहुत खराब सिचुएशन हमारे लिए बन जाती है। ये थे डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा। शर्बीन, आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट के निफाज के लिए एक जामे जायजा मीटिंग की सदारत की ताकि शहरियों के लिए जरूरी खिदमात की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने शहरियों पर मरकूज हुक्मरानी के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। ये जानकारी वज़ीर आला के दफ्तर के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए दी गई है। साबिक वजीर सईद अब्दुल रशीद ने बैंक कोकरनाग इलाके में बिजली सप्लाई की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इंतजामिया से गैर जरूरी बिजली कटौती पर नजरसानी करने और सप्लाई में माकूलियत लाने की अपील की है। यूनुस परी ने बड़गाम से खबर दी है कि जिले के आरत इलाके में गुज़श्ता शाम एक नौजवान पर तेज धार
हथियार से हमला किया गया, जिसके नतीजे में शदीद तौर जख्मी हुआ। मजरूब नौजवान की शिनाख्त समीर अहमद साकिन आरत के तौर हुई है और उसे श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। बारामूला से मिली इत्तलात के मुताबिक अजर पहलीपुरा इलाके में आज सुबह एक सड़क हादसे में आर्मी गुडविल स्कूल के कम अज कम 10 तालिब इल्म जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब स्कूल की किराए पर ली गई गाड़ी किसी वजह से बेकाबू होकर सड़क के किनारे से जा टकराई। वाकई की खबर मिलते ही इमदादी टीमों ने जख्मी तालिब इल्मों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला मुंतकिल कराया, जहां सभी बच्चों की हालत श्रीनगर से सुन रहे हैं। आज हम कौमी नशरियाती दिन को चौबंद रखे गए हैं, जो यात्रियों को यात्रा के दौरान हर मुमकिन सहूलियत हम पहुंचाने में 24 घंटे पेश रहते हैं। वजह रही जम्मू भगवती नगर बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से शाम 5 बजे के बाद आने वाले किसी भी यात्री को ट्रांजिट कम मनगाम और ट्रांजिट कम शादीपोरा से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है, बल्कि शाम 5 बजे के बाद यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों को इन्हीं ट्रांजिट कैंपों में रुकना पड़ता है। इस तरह गुज़श्ता दिनों की तरह आज भी अमरनाथ यात्रा बड़ी खुश असलूबी से जारी है, जिसकी निगरानी जिला और सूबाई इंतजामिया के सिविल और पुलिस के आला अफसरान कर रहे हैं। आपने रहीम रिजवान की रिपोर्ट सुनी। इस दौरान अमरनाथ यात्रा के दौरान सिक्योरिटी और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने गगनगीर सोनमर्ग इलाके में एक वसी सतह का मॉक ड्रिल अंजाम दिया। सरकारी जराये के मुताबिक इस मशक का मकसद मुमकिन खतरा से निपटने की तैयारी, फोर्सेज के दरमियान हम आहंगी और यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। पीडीपी का एक इजलास आज पार्टी लीडर अल्ताफ मलिक की सदारत में अच्छाबल रफियाबाद में मुनक्कद हुआ, जिसमें यूथ और खवातीन विंग के अहदेदारों ने भी शिरकत की। इजलास में कारकुनान बशमूल खवातीन पर जोर दिया गया कि वो पार्टी के 28 जुलाई के यौम तासीस में अपनी शमूलियत यकीनी बनाएं और पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करें। सभी गुज़श्ता शाम तचन इलाके में एक जेसीबी के खाई में गिर जाने से 3 अफराद की मौत हुई थी, जिनकी पहचान नजीर अहमद, मोहम्मद इसाक और अब्दुल हमीद के तौर हुई है। आज उनकी तदफीन अमल में लाई गई। इस दिलखराश हादसे पर साबिक वजीर सजाद अहमद किचलू, गुलाम मोहम्मद सुरूरी, साबिक एमएलसी मोहम्मद इकबाल भटबलीसी और जिला तरक्याती कौंसिल की चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने सदमे का इजहार किया और मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की है। सामिन गांधरबल के रखिहरन, गाडूरा, डगपोरा, शेख मोल्ला, मीर मोल्ला और मुनिका देहात के बाशिंदों की शिकायत है कि वहां नाले सिंध से एक शाख खौन पहलीपुरा से गुजरती है और ये कनाल हजारों कनाल जरी जमीन को आबाद करती है। इस शाख के किनारों पर बाज खुदगर्ज अनासर की तरफ से तजावुजात खड़ा किए गए हैं, जिस वजह से ये कनाल किसानों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं दे पा रही है और किसान सिंचाई को लेकर सख्त परेशान है। ये मामला जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के नोट्स में बारहा लाया गया, मगर कनाल की बहाली के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि हजारों कनाल जरी जमीन पर काश मुतासिर है। इलाके के किसानों ने अब सूबाई कमिश्नर कश्मीर से अपील की है कि इस मामले में जरूरी मुदाखलत की जाए और कनाल को फौरी तौर बहाल कराया जाए। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।